Okay, hi everyone. Talk Data with Jan is back with another video, and this is the most requested video on my channel and most important for fresher. So tell me on which topic I am making the video in the comment section. And we'll start this video with a hot water because stay hydrated and take care of your health. So let's begin. And one more thing, if you haven't checked Talk Data with Jan YouTube channel, so just go and check the Talk Data with Jan YouTube channel. So I will not take much time of yours. Let's get started with the topic. So in this video, I will be explaining you how you can build your resume, as it is the most important step for a fresher to put everything which is relatable to your skills or to your knowledge. I will tell you section wise. So number one comes your name, and that will be in capital letter. So and your official email ID and your number. Number always should be which is accessible and which has a recharge, so that if the hiring manager is calling you, so you can easily pick up that call. And along with that, the most important three things which you can put. Number one is LinkedIn, your portfolio, your GitHub. Portfolio as in one pager where all your skills, all your projects you can show to the recruiter. So let's get started. Next is your function areas, as in on which things you will be working or want to work in the job role. So as I've written ETL, data analyst, data mining, and data visualization. If you are applying for Power BI developer role, so you can put data visualization. Next comes your skills. So according to your preparation or according to the job role or to the JD, you can put the skills. As in here I have put advanced Excel, SQL, Python, Tableau, and Power BI. In Tableau and Power BI, here you have to note one thing, that you can put one visualization tool in which you are comfortable, as in Power BI or Tableau, and you can write the sub point topics also, so that your interview goes around these topics only, and interviewer know that okay, you have expertise or you have knowledge about these topics. So that's why I have kept, or this is the first advice to you, that you should keep this subtopics. Now next comes your project. So projects, as in if you have done any internship, so you can put those projects in it. And if those projects are confidential, so don't put them. But if you have done some projects in your learning, or while you are transitioning to data analyst, or you are studying data analyst, so you can put. So how it will come? Domain, like in which domain you have made your project, किस domain में आपने अपना project बनाया है. Next comes what is the objective, मतलब आप क्या solve कर रहे हो उससे, what is the solution, and what is the key achievements, and प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली. सो इस चीज के बारे में और स्किल के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात करा है, तो आप जाके देख सकते हो कि कौन सी तीन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेशर के लिए, तो उसमें आपको पता लग जाएगा. एंड इसमें एक और एडवाइस है कि इसमें आप अपनी प्रोजेक्ट लिंक भी डालो, जिससे कि हायरिंग मैनेजर को पता लगे कि हाँ आपने प्रोजेक्ट कर, और वो इजी देख सके कि अच्छा आपको ये चीजें आती हैं उस टूल में. तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट्स को भी इंटरलिंक करा है. उसके बाद टूल में आप एक प्रोजेक्ट कर सकते हो, जैसे SQL में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, पाइथन में, विजुअलाइजेशन टू BI, टैबलो एंड पावर BI. नाउ नेक्स्ट कम इंटरव्यू. If you have the internship experience, physical internship experience और online internship experience, तो आप वो यहाँ लिख सकते हो कि आपने क्या क्या काम करा, किस किस चीज़ों पे काम करा, और आपने क्या टूल्स और स्किल्स उसमें यूज करी, इसमें लिख सकते हो, जिससे कि इंटरव्यूअर को और हायरिंग मैनेजर को आपके लिए इजी हो कि अच्छा इस इंसान को ये चीज़ आती है. नाउ कम्स वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस. ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरे पास था इसलिए आई हैव पुट इन माय रिज्यूमे. अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं डालो, कोई इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन अगर है तो आप डाल सकते हो. क्योंकि मेन व्हाई आई हैव पुट दिस इन माय रिज्यूमे, बिकॉज आई वांट टू शो दैट ओके, अदर देन माय एजुकेशन और एकेडमिक थिंग्स, आई हैव डन सम वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस. एज यू कैन सी, कंडक्टेड अ ग्रुप सेशन अमंग 50 लीडर्स वेयर आई गाइडेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग फंडामेंटल लेवल ऑफ डैशबोर्ड ऑफ पावर BI. तो इसमें ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे आप रिक्रूटर्स को अपनी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बता सकते हो, जो उन बेसिस पे आपको जज कर सकता है, या फिर आपको मार्क दे सकता है, या फिर उसका क्राइटेरिया हो कि अच्छा हम ऐसे किसी को उसकी सॉफ्ट स्किल्स पे जज करेंगे, या फिर वो कैंडिडेट उस पोजीशन के राइट है या रॉन्ग है. सो ये ऑप्शन है, आपको अगर रखना है तो आप रख सकते हो. देन कम्स योर एजुकेशन, मींस पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने करा है, कब कब करा है, आप वो डाल सकते हो. सो दिस इज द बेसिक ऑफ योर रिज्यूमे, कि आप ऐसे अपना रिज्यूमे बना सकते हो. एंड देयर इज वन मोर एडवाइस, दैट ऑलवेज पुट थिंग्स जो आपने करी हो खुद. किसी से कॉपी रिज्यूमे बना के मत डालो, क्योंकि वो पता लग जाता है रिक्रूटर को, और आपका रिज्यूमे वही रिजेक्ट हो जाता है. तो मेरी हमेशा से ये एडवाइस है कि वो चीज़ डालो जो आपको आती है, जिन स्किल्स को आपने खुद कर रखा हो, बेसिक आता हो आपको, रेदर देन एडवांस और कुछ भी झूठा मत डालो, बिकॉज इंटरव्यू के टाइम आपको जवाब देना होता है, आपको उनके क्वेश्चंस को आंसर करना होता है. तो दिस इज द वे, और मैं इस रिज्यूमे का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज उन बच्चों के साथ शेयर करो जो अपना रिज्यूमे बना रहे हैं किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए, सो दैट दे कैन टेक द रेफरेंस फ्रॉम दिस रिज्यूमे, हाउ टू मेक एंड व्हाट सेक्शन एंड व्हाट टू पुट एंड वेयर टू पुट. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और आपने इस वीडियो के माध्यम से सीखा हो कि आप कैसे रिज्यूमे बना सकते हो. सो थैंक यू सो मच, एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड सब्सक्राइब टू टॉक डेटा विद जैन. और आपको आगे और ऐसी ही वीडियोस मिलेंगी कि जिसमें आप अपने पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट कैसे दिखा सकते हो, गिटहब में कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हो. एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू. थैंक यू सो मच.